Hello students, I am going to start the second video on alternating current, and the first topic is circuit theory. Very important topic, circuit theory. Actually, we have discussed a lot of about the resistance circuit, capacitor circuit when DC is present. Now I am going to start the resistance circuit, capacitor circuit or inductor circuit. The first theory is AC through resistance. AC through resistance. The first topic is AC through resistance. In this case, you consider a resistance whose value is capital R and one is the source, AC source, and the value of AC source is equal to E naught sin omega t. Consider let source EMF is E equal to E naught sin omega t. This is the instantaneous EMF. This is instantaneous EMF. Okay, this is the E equal to E naught sin omega t. We have to find the value of I across the resistor. What is the value of I across the resistor? And the process is very simple. As for example, V equal to IR, as you know, V equal to IR. Similarly, here we use E equal to IR. I means I into R. Then I equal to E upon R. Okay, means E naught by R or sin omega t, and simply I is equal to I naught sin omega t. This one is, and comparison equation 1 and 2. Comparison equation 1 and 2. Compare equation 1 and 2. We get क्या क्या हम लोग को मिलेगा ये देखना है. ठीक, सबसे पहले जब ये साइन ओमेगा टी के फंक्शन में है, ये भी साइन ओमेगा टी के फंक्शन में है, और अगर एंगल डिफरेंस हम निकाले तो एंगल डिफरेंस 0 आएगा. ठीक है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस. तो अगर कोई पूछे कि फेज डिफरेंस इस केस में क्या हुआ, फेज डिफरेंस मतलब क्या, φ2 माइनस φ1. अगर φ2 से दिक्कत है तो θ2 माइनस क्या ले लीजिएगा, θ1, और दोनों क्या है, ओमेगा टी ही है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0. तो फेज डिफरेंस जो होगा आपका, वो फेज डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा. लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि E जो है ये नॉट आप लिख रहे हैं और इसका वैल्यू जो है E नॉट बाई आर है. एक्चुअल में ये I नॉट है. I naught equal to E naught by R means I naught is the E naught 1 by R times of E naught, means E naught is greater than here I naught. Okay, this is the result, and we can draw the graph as you know, phasor diagram. As discussed in previous video, the phasor diagram is, this is the second thing is this, means I is lesser, then here you get I, and this is the E, or this value is omega t, and the phase difference between I and E is 0. That's why both are in the same direction. This is the phasor diagram. Just like one is the x at the x axis and other is the at y axis. And if you draw the sinusoidal wave as like this one is sinusoidal wave, means T, and this one is I or E. Okay, this is the origin 0, equal to E naught sin omega t. And as you know, E naught is greater than I naught, means the second graph is as like this graph, means this value is, this is the graph of EMF, means E, capital E, and this graph is current, means I. Okay, and this peak value, this is the peak value is E naught.
this peak value is E naught and this peak value is I naught, this value. Okay, and both are goes simultaneously. This then there is no phase difference between the I and E. सारे जितने भी हम अभी थ्योरी डील करेंगे उसमें दो ही चीज देखना है, आइदर हम E लेकर के I निकाल करके उसका रिलेशन देखेंगे, नहीं तो I दिया रहेगा तो हम उसको E निकाल के देखेंगे। बस इतना ही करना है कि I और E का दो इक्वेशन हम लोग को निकालना है, एक ये और एक ये। दोनों इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कितना फेज डिफरेंस है, इसका कितना फेज डिफरेंस है भी कि नहीं है। तो इस केस में फेज डिफरेंस 0 आया, कोई पूछेगा इसीलिए इसको बोलते हैं इन फेज। अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग इन फेज। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री आएगा, इफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, फेज डिफरेंस अगर आता है 0 डिग्री तो उसका एक टर्म है इन फेज। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री आ जाए तो उस केस में हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। द नेक्स्ट टॉपिक इज AC थ्रू इंडक्टर, एंड द इंडक्टर इज एज लाइक दिस solenoid behaves in the inductor. This is the AC and the value of AC is equal to E naught sin omega t. Here is source EMF, this is the source EMF is equal to E naught sin omega. And one is another thing, the EMF produced, EMF induced in inductor, and the value is minus d pi by dt, as you know, means minus L di by dt. This is the induced value, means the instantaneous EMF of source is this, and this is the instantaneous EMF induced in inductor. Then total instantaneous EMF is equal to total potential difference या potential drop across circuit element. Here there is no potential difference across the circuit element, means the E plus E equal to 0. Okay, then the value of E is E naught sin omega t, and the EMF is minus L into di by dt equal to 0. Okay, then the value is E naught sin omega t is equal to L into di by dt, and this is di by dt is equal to E naught by L. Okay, and this one is sin omega t, di equal to E naught by L into sin omega t into dt. The total current is integration of di is equal to E naught by L integration of sin omega t into dt is equal to E naught by L minus cos omega t or by omega. This is the formula, and it is E naught by omega L is minus cos omega t. Okay, this is the result. I equal to E naught by omega L, that is the I equal to I naught और माइनस cos ओमेगा t. देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि हम लोग का I का जो फंक्शन है वो साइन में है और E का फंक्शन साइन में है और I का फंक्शन cos में है, तो ये नहीं चलने वाला, ये आपका सही नहीं है। जब माइनस cos ओमेगा t को अगर हम साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तब इसको लिखेंगे I नॉट और तब यहाँ लिखेंगे साइन और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। मतलब आप कह सकते हो कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी।
अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि साइन आप लोगे तो साइन को अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब तो हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो चाहे आप डायरेक्ट लिखिए चाहे इसको ऐसे तोड़ करके समझिए, बात तो आपका सेम, ठीक। तो अब जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर कितना को, 2 को, और इक्वेशन नंबर 1 को, ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलता है ये सोचना पड़ेगा। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, आप देखेंगे कि इस केस में फेज डिफरेंस जो आया, फेज डिफरेंस जो आएगा वो π/2 आएगा। कैसे? तो फेज डिफरेंस के मतलब क्या, ओमेगा टी माइनस π/2 और माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा टी कीजिएगा तो ओमेगा टी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस π/2 बचेगा। मतलब अब एक समझिए, इस केस में अगर आप माइनस भी लिखेंगे कि माइनस π/2 आया तो एंगल तो हम π/2 लेंगे, मतलब करंट जो है पीछे है, किससे, ईएमएफ से। करंट लैग्स ईएमएफ बाई 90 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कि करंट लैग्स ईएमएफ बाई π/2। अगर प्लस साइन होगा तो लीड लिखेंगे, अगर माइनस साइन होगा तो लैग्स कहेंगे। लैग्स माने पीछे, करंट पीछे चल रहा है, किससे, ईएमएफ से। अब फेयर डायग्राम बनाना है, 3 चीज करना है। देखिए इस काम में जो भी एसी सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 3 काम करना है। पहला तो करना है कि ईएमएफ और आई का हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन, 2 इक्वेशन लाना है और दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि फेज डिफरेंस कितना आया। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम है कि हम लोग को फेजर डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। फेजर डायग्राम के मतलब कि अगर आप एक्स बाई एक्सिस पे, मतलब आई और ई के जो साइनसॉइडल है उसको एक ही कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब एक ही रेफरेंस फ्रेम पे हम उसको शो करेंगे, उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। तो दूसरा काम है फेजर डायग्राम दिखाना, और तीसरा काम है वो साइनसॉइडल वेव बनाना कि वेव कैसे चल रहा है। ये 3 चीज समझना होगा आप लोग को। पहला क्या बताया कि ईएमएफ अगर दिया रहेगा तो करंट का इक्वेशन निकालिए, करंट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ईएमएफ निकालिए, दोनों में से एक दूसरे को इक्वेशन निकाल लीजिए। इन दोनों की इक्वेशन निकालने के बाद उसमें फाइंड आउट कीजिए कि कितना फेज एंगल है, यानी फेज डिफरेंस कितना है। अगर फेज डिफरेंस आप देखिएगा कि प्लस में आ रहा है तो वो लीड कर रहा है, जिसका प्लस होगा वो लीड कर रहा है, जिसका माइनस होगा वो लैग कर रहा है। यहाँ करंट में माइनस π/2 है, मतलब माइनस है, मतलब करंट पीछे है, किससे, ईएमएफ से। तो हम बोल देंगे कि लैग्स हो रहा है, करंट लैग्स ईएमएफ बाई π/2। और जो रेसिस्टर में देख रहे थे दोनों साथ साथ चल रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन, सेम ओमेगा टी उसका भी था, ओमेगा टी उसका भी था, और दोनों का फेज डिफरेंस क्या था, दोनों को जब दोनों का निकालते हैं फेज डिफरेंस 0 आ रहा था। इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन इस केस में ईएमएफ का जो है और करंट का, दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा। फेज डायग्राम देखिएगा एक्स और वाई एक्सिस में। तो हम मान लेते हैं कि ये ई का वैल्यू जो है, अच्छा एक और चीज देखना है कि ई नॉट बड़ा कि आई नॉट बड़ा। 2-3 चीजें भी समझाना है हमको। जैसे आई का जो वैल्यू है, आई नॉट का, आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, आई नॉट इक्वल टू आ रहा है ई नॉट बाई ओमेगा एल। और ये आई नॉट कैसे हो गया, ये तो होता है v इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू v बाई आर, तब ना हम आई कहेंगे। तो इसका मतलब कुछ है कहानी, है ना, उसको भी बताते हैं कि ये आर के, ये आर और इसके बराबर ये कैसे हो गया, तब ना इसको आई नॉट कहेंगे। ई नॉट तो ईएमएफ है जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तो आर ओमेगा एल के बराबर होगा, तब ना कहिएगा कि ये आर जो है रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, उसका भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा ये करना है कि आई नॉट बड़ा है कि ई नॉट बड़ा है। तो आप ई नॉट जो है 1 बाई ओमेगा एल टाइम्स ई नॉट है, मतलब आप श्योर देख रहे होंगे कि आई नॉट छोटा है किससे, ई नॉट से। तो छोटा लिखने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा इससे छोटा बनाइएगा, ये एरो जो बनाइएगा। देखिए 2 मेथड से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं।
एक तो वेक्टर मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है। जब आप इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ये क्या कौन सा मेथड है, ये ध्यान रखिए, एनालिटिकल, एनालिसिस जिसको बोलते हो एनालिटिकल मेथड, ये हो गया एनालिटिकल मेथड। जब आप वैल्यू लेने लीजिएगा तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। और जब आप ग्राफ वेक्टर के रूप में लीजिएगा, इस तरह से लीजिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल मेथड। ठीक है, वेक्टर मेथड तो आसान है, एनालिटिकल आप देख ही रहे हैं, तो आप 2-3 चीज में सीख लीजिएगा, बाकी सब में हम ग्राफिकल ही चलेंगे, लेकिन अभी 3 केस में हम एनालिटिकल आपको बताएंगे। तो आपका ये जो हुआ, ये आपको ओमेगा टी है, ये आप देख रहे हैं, और ओमेगा टी जो है ये π/2 से पीछे है, कौन, आई नॉट। इसको लिख दिए, आप इसको आई नॉट भी कह सकते हो, आई भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आई जो है ई से कितना पीछे है, π/, इंडक्टर के केस में ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर के केस में आई पीछे है ई से, करंट लैग्स ईएमएफ बाई π/2। तो उसी प्रकार से जब आप साइनसॉइडल वेव बनाइएगा, साइनसॉइडल वेव जब बनाइएगा तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ई का जो वैल्यू मिटा दिए, अच्छा ई का वैल्यू जो आई तो ये है, और ई का वैल्यू जो लिखे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं साइन का, तो जो साइन का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वैसे होगा। ये किसका है, ईएमएफ का, मतलब कैपिटल ई का। ठीक, दूसरा जो हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो होगा आपका कॉस का। तो कॉस में आपको पता है कि ई जो है छोटा है, तो सॉरी आई छोटा है, तो आई छोटा है तो उसका जो पीक वैल्यू होगा वो थोड़ा नीचे बनाइएगा, इस तरह से, ऐसे, ठीक, ऐसे जाएगा ये, है ना। तो ये आपका जो ये वैल्यू देख रहे हैं, ये हाइट और ये हाइट, दोनों का हाइट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपका होगा ई नॉट, ये जो पीक वैल्यू है ये होगा ई नॉट, और देखिए ये जो पीक है ये होगा आई नॉट। तो अब आपको लग रहा है कि आई नॉट छोटा है किससे, ई नॉट से। तो इस केस में जब इस यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब ये टाइम 0 ले रहे हैं आप तो समझ ही रहे होंगे टाइम 0 है, फिर ये आप यहाँ लेके चल आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा π/4, नहीं ये π/2 90 डिग्री, ये पाई, फिर 3 जो आप लेते हैं π0 और ये कितना लीजिएगा π/2, फिर कितना लीजिएगा पाई, फिर ये कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के 2 पाई होगा कि 1.5 पाई होगा। ठीक है, ये 0 π/2, ये कितना हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा 3/2 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। 0.5, 1, 1.5 और 2 ऐसे याद कीजिए। तो ये था आपका साइनसॉइडल वेव का। इसमें कितना सारा पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि ईएमएफ जो है वह ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। आई जो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। माने ओमेगा टी तो ये है, तो ओमेगा टी से माइनस कर दीजिए π/2, तब करंट आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस को आपको समझ ही गए। जो फेज डिफरेंस, ये क्या है, फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा π/2। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इसको ओमेगा एल जो लिखिएगा उसको एक्सेल करिएगा। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जब आप निकालिएगा इसका वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस आप क्या लिखे हैं, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल के बारे में जानते हैं, ये 2π/t होगा, और एल का मतलब होता है v × t/i। तो ये t से तो t कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो बचा क्या v/i, और v/i को r नहीं लिखते हो, तो ये एक्सेल का जो होगा, ये एक्सेल इक्विवेलेंट है किसका, रेसिस्टेंस का ही, इसलिए एक्सेल को हम लोग क्या नाम दिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका यूनिट जो होगा आप जो लिखते हो ओम। ठीक है, और सिंबल जो लिखते हो ये, ठीक, ये हो गया। तो एक्सेल हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसके लिए, इसका। जब हम एसी में लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा ओमेगा एल एक्सेल होगा। यानी कि अब आप समझिए इस बात को कि आई नॉट इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, आई नॉट इक्वल टू लिख रहे हो ई नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक, तो ई नॉट बाई
2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू एल। अब समझिए आपका डीसी जो करंट होता है, मतलब डायरेक्ट करंट जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। क्यों फ्रीक्वेंसी जीरो क्यों होता है? क्योंकि उसका डायरेक्शन periodically चेंज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। और एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज के मतलब जो आपके घर में बल्ब है या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या यूज कर रहे हैं, जब एसी से चला रहे हैं तो इसका मतलब वो 50 और 50 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में मार, तो 100 सेकंड बार वो डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये करंट क्या हो जाएगा? देखिए इस केस में अगर जीरो होता है, किसी चीज में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इनफिनाइट हो जाता है। हाँ, मतलब कि आई डीसी करंट के लिए आई नॉट कुछ ना कुछ होगा, मतलब इजी पाथ प्रोड्यूस, मतलब इंडक्टर जो होगा, इंडक्टर गिव्स इजी पाथ फॉर डीसी करंट, और डीसी करंट। डीसी लिखने को लिख देते हैं, लेकिन डीसी के मतलब ही होता है डायरेक्ट करंट। अब देखिए जब डीसी होगा तो उसके लिए तो पाथ दे देगा, लेकिन जब एसी करंट होगा इस केस में तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। जब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा तो आई नॉट का वैल्यू इससे कम होगा। तो अब एक और बात कि एक्सएल का वैल्यू कोई पूछता है कि एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सएल इक्वल टू आप जानते हैं कि कितना आता है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल के मतलब 2 पाई न्यू, मतलब एक्सएल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। किस केस में? डीसी के केस में। डीसी में कोई पूछेगा कि एक्सएल के कितना वैल्यू हुआ, तो जीरो वैल्यू हुआ। लेकिन अगर एसी के केस में पूछेगा कि एक्सएल का वैल्यू क्या हुआ, एसी के केस में तो कुछ ना फाइनाइट वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है। तो याद करने का कौन कौन टर्म बताए? एक टर्म तो पहला टर्म बताया आपका ईएमएफ का इक्वेशन, दूसरा करंट का इक्वेशन, तीसरा फेज डिफरेंस, चौथा में ओमेगा एल, पांचवा में क्या बताया? डीसी अगर करंट लीजिएगा तो डीसी करंट के लिए एक्सएल क्या हो गया? जीरो, और आई नॉट जो होगा, जो मतलब आई करंट जो होगा, तो इंडक्टर जो है गिव्स इजी पाथ, इंडक्टर गिव्स इजी पाथ फॉर डीसी करंट और डीसी करंट। और छठा जो होगा पॉइंट इसका, एसी के लिए एक्सएल कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हैज फाइनाइट वैल्यू, एक्सएल हैज फाइनाइट वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होगा इसका। और गिव्स रेसिस्टिव पार्ट बोलते हैं, रेसिस्टिव पार्ट, मतलब कुछ ना कुछ अवरोध पैदा करेगा और करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 6 पॉइंट है आउटपुट, जो कह सकते हैं इस टॉपिक का आउटपुट निकला। ये 6 पॉइंट में ही आउटपुट होगा। 7वां में अगर मानिएगा तो ये ग्राफ, और 8वां में मानिएगा तो ये, ठीक है। या काउंटिंग आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था एसी थ्रू इंडक्टर। अब इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग डीसी करंट पढ़ते हैं तो कुछ अलग बिहेव करता है सेम इंस्ट्रूमेंट, और एसी जब पढ़ते हैं तो सेम इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग बिहेव करता है। तो हम लोग अलग अलग केस में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इसका बिहेवियर हम समझ पाए कि एसी में कैसे बिहेव करता है इंडक्टर, डीसी में कैसे बिहेव करता है इंडक्टर। अब बारी आती है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है एसी और डीसी के साथ। The third topic is AC through capacitor. AC through capacitor. ठीक है, तो एक कैपेसिटर आप ले लीजिए, सिंपल एक सर्किट बनाना है हम लोग को। एक कैपेसिटर लेके पैरेलल प्लेट ही जनरली लेते हैं, एक पैरेलल प्लेट लिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ लिए। अब देखिए ये जो आप बनाते हैं, बार बार हम लोग बना रहे हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इसको लिखेंगे इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ ऑफ सर्किट। आप सर्किट लगा सकते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू जो होगा E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप समझ रहे होंगे कि पोटेंशियल आप लिख सकते हैं कि इंस्टैन्टेनियस पोटेंशियल या इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ of circuit is equal to instantaneous potential drop
अक्रॉस सर्किट एलिमेंट, अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। ये दो एक लाइन आपको याद रखना है, यही चीज याद रखना है बस कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा सो और कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है जो, तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप तो आप देख ही लिए कि ई है, सॉरी ईएमएफ तो ई है, और ड्रॉप कितना होगा तो Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू कितना होगा Q बाई सी, तो आप यहां लिख सकते हो Q बाई सी। सिंपल चीज है कि आप लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू कितना होता है, इसका वैल्यू C ले रहे हैं तो Q इक्वल टू सी भी होता है, तो V इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो Q बाई सी ले सकते हैं, ठीक है, Q बाई सी लिखते हैं। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा Q इक्वल टू ये हो जाएगा EC, ठीक। तो हम लोग को तो निकालना है इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, करंट का इक्वेशन चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, ये इससे तो कोई काम भी नहीं होगा, हमको करंट चाहिए। तो करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा इसका। आप इसको लिख सकते हो कि C और इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप लिख सकते हो, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला, हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा करंट निकालने के लिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dq बाई क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू, आप इसको लिखिएगा c तो इधर लिख दिए हैं, c तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कर दिए, और d sin ओमेगा t, अब बाई क्या लिखना होगा dt लिखना होगा। तो dq बाई dt तो अब हम i इसको लिख सकते हैं, और ये c e नॉट है तो c e नॉट को हम यहाँ लिख देते हैं c e नॉट, ठीक। अब साइन ओमेगा टी का आपको पता होगा कि ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, ये सब फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन है तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक। तो अब जो वैल्यू बनेगा आई इज इक्वल टू क्या बनेगा सी ई नॉट या ओमेगा सी ई नॉट, और क्या लिखेंगे कॉस ओमेगा टी। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके कि 1 अपॉन ओमेगा से लिख दे, ये कितना होगा कॉस ओमेगा टी, और इसी का वैल्यू जो है हम लोग जो बोलेंगे एक्सी बोलेंगे इसको, एक्सी, और ये कॉस ओमेगा टी, और एक्सी का जो वैल्यू होगा इसी को हम आई नॉट कहेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन एक झमेला यहाँ भी है, क्या झमेला है कि ये साइन के फंक्शन में, ये कॉस के फंक्शन में है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं कंपैरिजन, तो हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2, यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो प्लस पाई बाई 2 है तो इसका मतलब है कि करंट जो है इस केस में लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, माने करंट आगे है, करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई 2। यहां लिखेंगे एकदम मेन पॉइंट कि करंट लीड्स ईएमएफ बाई कितना से पाई बाई 2 से, यानी कि फेज डिफरेंस जो होगा वह कहलाएगा पाई बाई 2। कैपेसिटर के केस में लीड करता है, इंडक्टर के केस में लैग करता है, मतलब करंट पीछे होता है। अच्छा, अगर फेज डायग्राम ही बनाना है इसी कंसेप्ट के आधार पे, तो फेज डायग्राम बन जाएगा एक्स और वाई लीजिएगा। तो आज एक और चीज तय करना है कि ये जो आई नॉट है, हमेशा से आई नॉट क्या होता है, छोटा होता है। तो एक आप मान लेते हैं कि कोई ईएमएफ आप इधर लिए, ईएमएफ कोई इस तरह से इतना एंगल पे, तो ओमेगा टी एंगल पे, जैसे था ये ओमेगा टी एंगल पर ईएमएफ था, तो ओमेगा टी एंगल पे हम ले लिए, तो इस पे 90 डिग्री का जो बनाएंगे एंगल और उससे आगे बनाएंगे, देखिए इससे आगे बना रहे हैं तो पाई बाई 2, तो ये कहलाएगा आई। तो ईएमएफ आई जो है पाई बाई टी से लीड कर रहा है, और जैसे ही पाई बाई टी अगर इधर दिखा दीजिएगा, आप इस केस में दिखा दीजिएगा आई, तो ये हो जाएगा इंडक्टर के लिए, नीचे में हो जाएगा इंडक्टर के लिए, और लीड करेगा तो हो जाएगा इसके लिए कैपेसिटर के लिए। इतना ही कहानी है। और जो इक्वेशन बनने वाला है अब, जो ये साइनसॉइडल का जो बनाते हैं हम लोग, टी और ओमेगा का जो ग्राफ, सॉरी टी और आई और ईएमएफ का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइनसॉइडल, ये कैसा बनेगा, तो साइन में कौन है, ईएमएफ है, तो ईएमएफ को साइन में बना दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसको साइन में बना दिए। ये जो वैल्यू होगा ये क्या कहलाएगा, ई नॉट कहलाएगा। ये बोल्ड लाइन जो है ये ईएमएफ के लिए बनाते हैं हम लोग, मतलब कैपिटल ई, ये बड़ा भी होता है। ये थोड़ा पिक वैल्यू जो है इसका आई नॉट थोड़ा
छोटा होगा। ये ग्राफ जो हम बनाए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये ई नॉट ये ईएमएफ का है, ब्लैक वाला ईएमएफ का है, ब्लू का जो है वो करंट का है। तो जब हम टाइम जीरो ले रहे हैं तो उस समय ईएमएफ जीरो है, लेकिन उस समय पीक वैल्यू है आई नॉट का, मतलब आगे है इसका। और जब नेक्स्ट आप टाइम जो है t बाई 4 में आते हैं, माने पाई बाई 2 एंगल जब ट्रेवल करता है ये, तो उस केस में ये करंट जीरो हो जा रहा है और ईएमएफ मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं कि करंट क्या है, लीड कर रहा है, किससे, ईएमएफ से लीड कर रहा है। तो अब याद करने का पॉइंट कौन कौन सा आया, तो और यहाँ समझाना है कि एक्सी क्या है। यहाँ एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका नाम है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक और नाम है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, दोनों में से कोई नाम ले सकते हैं। और एक्सी का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो है 1 बाई ओमेगा सी है। एक्सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, इसी को हम लोग क्या बोले, जनरली लोग बोलता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसका भी यूनिट होगा जो ओम ही होगा, इसका भी यूनिट कैसे ओम होगा आप थोड़ा समझिए इसको फिर से। ओमेगा आप समझते हैं 2 पाई बाई टी होता है, और सी के मतलब आप पढ़े अभी क्या पढ़े, क्यू। सी का मतलब क्या, सी का मतलब आप निकालिएगा तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, टी होगा, तो क्यू बाई भी लिख दीजिए। और क्यू बाई टी को क्या कहते हैं, आई नहीं कहते हैं क्या, आई तो कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये 1 बाई ये आई बाई कितना हो गया भी, तो आई बाई भी कितना होता है 1 बाई आर। 1 बाई आर के मतलब क्या हो जाएगा, आर ही ना होगा। जैसे कि भी इक्वल टू क्या लिखते हो आई आर, तो ये आपका भी बाई आई को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो अगर ये आई बाई भी है तो कितना हो जाएगा 1 बाई आर। ये चीज जो आप लिख रहे हैं 1 बाई, तो एक्सी, एक्सी क्या बताए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका वैल्यू क्या बताए 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी मतलब 1 बाई 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी और इंटू सी। और सी का मतलब क्या बताए क्यू बाई बी, ठीक है। तो 1 बाई क्या लिखेंगे 2 पाई बाई टी और इंटू क्यू बराबर क्या लिखते हैं आई इंटू टी बाई वी। टी से टी क्या होगा कैंसिल, आई बाई वी क्या हो जाएगा 1 बाई आर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में ये रह जाएगा 1/1 बाई आर। एक्सी का वैल्यू देखिए 1 बाई मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा आर ही हो जाएगा। एक्सी मतलब क्या हो गया आर हो गया। तो जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वहां आई इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी लिख रहे हैं, ई नॉट बाई आर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ई नॉट बाई आर लिखेंगे तो इसीलिए एक्सी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओम, इस तरह से, ठीक। अब समझ गया होंगे आप लोग। और ये चूंकि ईएमएफ है बाई आर से डिवाइड करेंगे तो ये आई बन जाएगा, इसी को हम लोग आई नॉट का। तो याद करने का क्या क्या पॉइंट हुआ, याद करने का जो पॉइंट है वो अब डिस्कस करते हैं। 7-8 पॉइंट भी बनेगा। पहला तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में जो याद करना है वो फर्स्ट पॉइंट को आपका ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस का जब ले रहे हैं तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा में याद करने का पॉइंट है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब तीसरा पॉइंट में बनेगा कि फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस फाई, हम फाई ले रहे हैं, कुछ और भी एंगल ले सकता है, ये पाई बाई 2 है। मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स ईएमएफ बाई कितना पाई बाई 2, ये हो गया। मतलब 90 डिग्री से करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है, ठीक। फोर्थ पॉइंट में आपको याद करना है डीसी के लिए कि डीसी के लिए कैसा बिहेव करेगा और एसी के लिए कैसा बिहेव करेगा। तो डीसी के लिए क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0 होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होता है। इसका मतलब एक्सी जो होगा 1 बाई ओमेगा सी लिखते हो और ये 2 पाई न्यू इंटू सी होगा। अगर ये 0 होगा तो एक्सी क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब डीसी करंट के लिए ये जो है आपको ये रेसिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा, मतलब ब्लॉक कर देगा एक तरह से।
एक्सी क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो लेते एक्सी इनफिनाइट हो जाएगा, एक्सी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जब एक्सी इनफिनाइट हो गया तो आई नॉट का जो वैल्यू लिखे हैं ई नॉट बाई क्या लिखे हैं एक्स सी, एक्सी लिखे हैं। तो इस केस में अगर इनफिनाइट हो गया तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी करंट पास नहीं होने देगा डीसी करंट। मतलब अगर आप किसी कैपेसिटर को डीसी करंट लगा देते हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई सेल ले रहे हैं और सेल के क्रॉस में कोई कैपेसिटर लगा देते हैं तो एक तरह से सर्किट ब्रेकर जैसा काम करता है, क्योंकि करंट जाने नहीं देगा, करंट को क्या कर देता है जीरो कर देता है। तो डीसी करंट के लिए करंट क्या करता है, डीसी के लिए करंट का वैल्यू जीरो करता है, मतलब कैपेसिटर के थ्रू जो है करंट नहीं जाएगा। एकदम क्लियर, ठीक। अब जो फिफ्थ पॉइंट आने जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिफ्थ पॉइंट को एसी के लिए क्या करेगा ये। तो एसी के लिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ न्यू जो है वो जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, यूएस में कितना होता है 100 हर्ट्ज होता है शायद। तो एक्सी जो होगा इस केस में 1/2 पाई न्यू इंटू सी होगा। तो न्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू है तो एक्सी का भी वैल्यू होगा, एक्सी भी क्या होगा ना, ये जो हम वहाँ इनफिनाइट लिखे हैं लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो एक्सी करंट को ये पाथ देगा जाने के लिए। एक्सी जो जब आप निकालिए जब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इसको इजी पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब कैपेसिटर प्रोवाइड्स इजी पाथ, कैपेसिटर प्रोवाइड्स इजी पाथ और किसके लिए, एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए इजी पाथ प्रोवाइड करेगा, जबकि डीसी के लिए एकदम सर्किट ब्रेक कर देगा, मतलब करंट ही नहीं जाने देगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट हुआ। और सिक्स्थ पॉइंट में आप डायग्राम याद रखिए, सेवेंथ पॉइंट में आप उसका साइनसॉइडल कंपैरिजन याद कीजिए। तो ये था आपका 3 रेसिस्टर्स, तीनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको हम थोड़ा रिजर्व में रखते हैं। ये आपका रेसिस्टेंस या रेसिस्टर जो भी कह लीजिए, दूसरे को हम रख रहे हैं इंडक्टर, ठीक है, और तीसरे को हम रख रहे हैं कैपेसिटर। और सब एसी ही जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये रेसिस्टर ले रहे हैं, ये इंडक्टर ले रहे हैं, ये कैपेसिटर ले रहे हैं। 3 केस हम पढ़ाएं, तीनों केस लेंगे। तो जब किसी को हम सोर्स की बात करेंगे, ये पॉइंट पहला पॉइंट है सोर्स का, तो सभी सोर्स में हम लोग इस्तेमाल किए हैं E = E0 sin ओमेगा टी। यहाँ भी E = E0 sin ओमेगा टी है, यहाँ भी E = E0 sin ओमेगा टी है। इस केस में भी दिए हैं E = E0 sin ओमेगा टी, ठीक। दूसरे में करंट का वैल्यू क्या होता है, कितना करंट बनता है। तो इस केस में करंट जो है I0 sin ओमेगा टी लिखे। इस केस में I का वैल्यू जो है I0 और साइन और ओमेगा टी माइनस π/2 लिए। और इस केस में डिराइव हुआ है वो हुआ है I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 हुआ, ठीक। तीसरा जो केस है आप लोग का फेज डिफरेंस, जो हम लोग बोलते हैं फाई, फेज डिफरेंस और फाई जो बोलते हैं। इस केस में अगर फाई का वैल्यू होगा 0 डिग्री, इस केस में फाई का वैल्यू होगा 90 डिग्री, मतलब π/2 और माइनस साइन है और ये साथ साथ चलेगा, है ना। आई फेज डिफरेंस 0 हो गया तो ईएमएफ एंड करंट, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्लो, साइमल्टेनियसली चलेगा, साथ साथ चलेगा। लेकिन इस केस में भी फाई का वैल्यू π/2 होगा, लेकिन इस अच्छा यहाँ लैग्स होगा, करंट लैग्स छूट रहा था, करंट लैग्स ईएमएफ बाई कितना से π/2 और ये हो जाएगा करंट लीड्स ईएमएफ बाई क्या, बाई π/2। तो इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में अब आते हैं। ये जो हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस वाला ही पार्ट कहते हैं, जो रेसिस्टिव पार्ट जो होगा, रेसिस्टिव कहते हैं, रेसिस्टिव पार्ट जो होगा इसमें रेसिस्टेंस लेंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस को तो पता ही होगा आप लोग को, इसको ओम ही कहते हैं यूनिट, इसको भी ओम कहते हैं। सिंबल लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक।
उसके बाद जब आप देखिएगा इस केस में इंडक्टर के केस में देखिएगा कि इसको एक्सेल कहते हैं। एक्सेल को क्या बताए थे, इसको बोले थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, या एक और नाम बताए थे कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। एक और नाम क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक। और इसको हम लोग ओमेगा एल लिए थे और इस केस में एक्सी बोले थे, और ये भी प्रूव किए थे कि एक्सेल जो होगा इसका यूनिट जो है हम लोग ओम इस्तेमाल करते हैं सेम, और ये भी ओम सिंबल ओम ही होगा। और एक्सी जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 1/ओमेगा-c, और इसका नाम जो है, इसका नाम जो है हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या इसको बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। अब आते हैं बिहेवियर पे कि बिहेवियर कैसा किसका है। तो बिहेवियर में आप देखिएगा इसका कि डीसी में कैसे वर्क करता है। तो डीसी चूंकि आप जान ही रहे हैं कि आई इक्वल टू क्या लिखे थे, E0/R लिखे थे, ठीक। तो वैल्यू भले चेंज करेगा, मतलब जब डायग्राम का बात करेंगे तो इसमें हम बता चुके थे कि आई और ई दोनों क्या होगा, एक ही फेयर डायग्राम पे आप इसको डिनोट कर दीजिएगा एक्स और वाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इस केस में जब डीसी पे आइएगा तो इस केस में जब आप स्टडी कीजिएगा तो एक्सएल को आप क्या लिखते हैं, ओमेगा एल को लिखते हैं 2 न्यू इंटू एल। तो हम बता चुके हैं कि अगर न्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक्सएल 0 हो जाएगा। एक्सएल 0 होगा तो जो आई नॉट का वैल्यू हम लिखे हैं कितना लिखे हैं, ई नॉट, और ई नॉट बाई एक्सएल लिखे हैं, ठीक है, ई नॉट बाई एक्सएल कितना है 0। तो ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम। इनफिनाइट के मतलब मैक्सिमम ही कहेंगे, इनफिनाइट कुछ है नहीं, लेकिन मैक्सिमम आएगा। कब आएगा, फॉर डीसी के लिए जब 0 पुट कर देंगे तो आई नॉट क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। आई नॉट इनफिनाइट के मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए, डीसी के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। उसी केस में अगर एक्सी लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा-c, 1/ओमेगा-c। तो इस केस में 1/2 न्यू इंटू सी होगा। तो अगर ये क्या हो जाएगा, अगर ये 0 लेते हैं तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम हो जाएगा तो जो करंट आप लिखते हैं ई नॉट बाई मतलब आई नॉट जो लिखते हैं एक्स, ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है डीसी करंट के लिए सर्किट ब्रेक का काम करता है। 6th पॉइंट में आपका आएगा एसी में क्या कीजिएगा, अच्छा हाँ एक चीज और है, लैग कर रहा था ना इंडक्टर में, कहाँ चल रहा था, करंट लैग्स कर रहा था। तो इसी जगह पे हम एक बना देते हैं फेजर डायग्राम छोटा सा आप लोग को समझाने के लिए। ये x है, ये y है, और ये जो है अगर आप यहाँ इसको e लेते हैं मतलब ओमेगा टी पे e है तो छोटा सा इसको बना देते हैं, अब कितना एंगल पे, π/2 पे, ठीक है। और इस जगह पे आप लोग देखिएगा कि ये लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है इसका मतलब कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर ये e लेते हैं तो इससे पाई एंगल बनाते हुए, π/2 एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो फेजर डायग्राम समझ में आ गया होगा। एसी में रेसिस्टर, तो एसी में कैसा, तो सेम, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसको भी वही लेके चलिएगा, एसी हो डीसी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगा, एक्सी जो आपका होगा, एक्सएल जो होगा, इसमें एक्सएल का वैल्यू कितना लिखते हैं, ओमेगा एल लिखते हैं, 2 न्यू इंटू एल है। तो ये कोई ना कोई तो फाइनाइट वैल्यू होगा। तो इस केस में तो जब इंडक्टर ले रहे थे तो डीसी तो मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन इसमें फाइनाइट वैल्यू होगा, मतलब ये 0 नहीं होने वाला है। जो एक्सएल 0 हो रहा था इस केस में एक्सएल 0 नहीं होगा। एक्सएल 0 नहीं होगा तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब इसी को हम बता चुके हैं, ये रेसिस्टिव पाथ बनाएगा, और लेकिन इसमें जो है आई नॉट लिखिएगा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी जो लिख रहे हैं, तो एक्सी कैसा होगा,
तो ये भी आपका वैल्यू नॉन, ये जो देख रहे थे कि एक्सी मैक्सिमम हो गया तो ये मिनिमम हो गया, लेकिन एक्सी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, जो ये मैक्सिमम था ये फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इसमें करंट जो है एसी करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर के थ्रू। मतलब आप इस तरह ये लिख सकते हो कि एसी फ्लो, ठीक है, एसी फ्लो करेगा कैपेसिटर से, एसी फ्लो करेगा, एसी करंट फ्लो करेगा, लेकिन डीसी करंट नहीं फ्लो करेगा।